مدے پہ چلتے ہیں بھائی کے ساتھ. چلو مدے پہ آپ کے سامنے ہے ادھر ادھر بکر بکر کی بات کرنے سے کیا فائدہ ہے بھائی, ختم کر دی بات. یہ دیکھیں چیپٹر نمبر 41 کی آیت نمبر 11 ہے آپ کے سامنے. ہندی میں پڑھیں گے, اردو میں پڑھیں گے یا عربی میں پڑھیں گے؟ اردو میں پڑھیں گے. اوکے سر پڑھیے گا, اور زوم کر دیتا ہوں آپ کے لیے. یہ دیکھیے پڑھیا جا رہا ہے آپ کے نہیں پڑھیا جا رہا ہے؟ آپ بولو نا. سر اب آپ پڑھ کے دکھائیں نا, اب آپ کے سامنے اردو میں. میں کیا پڑھوں, تم پڑھو نا, ہو گیا نا. اوکے پھر تم کہنا وہ کیا چاہتے ہو آسمان, بولو. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. کون؟ اللہ میاں. اور ابھی وہ ایک دھواں سا تھا, تو اس نے آسمان اور زمین سے کہا تم دونوں چلے آؤ خوشی سے یا جبرن. ان دونوں نے کہا ہم حاضر ہیں پوری آمادگی کے ساتھ. جبرن کو ٹان کر کے تو نہیں کہا اللہ میاں نے. تم جبرن کو کیوں ٹان رہے ہو؟ نہیں ایک منٹ ایڈم, ایک منٹ ایک منٹ ایڈم, جبرن کو میں ٹان کہہ کے رہا نہیں کہا نا. ہوں اچھا جبرن کو ٹانگ کے نہیں کہا ہے, اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تم بول رہے ہو نا, اس لیے تم کو پوچھ رہے وہ ہیں تو نا کیسے کہ بھی اگر کہہ ٹان کے سکتا کہا ہے, ہے تو بتاؤ. ایسے بھی ہو سکتا ہے, نارمل بھی ہو سکتا ہے, ہمیں نہیں پتا ایسا کیسے تھوڑی کہا اللہ ہوتا نے. ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ نے کیسے کہا؟ اللہ نے تو کیسے اسی کہا؟ لیے بول رہے ہیں تم تاکہ جو تھوڑا تم جو سمجھ آئے, فون فیلنگس کر رہے جاگے. ہو اس کے اوپر ہم بول رہے ہیں نا. چھوڑو, اچھا چھوڑو اس کو چھوڑو. بات کیا ہے یہ اس کو بول. چھوڑو, ہاں گولی تم مارو. یہی ہاں کہنا اصل چاہ رہے مدے ہو پہ نا آ جاؤ. کہ زمین آسمان کیسے بول سکتا ہے؟ ہاں نہیں, یہی نا. تین چیزیں سوال غور سے سن لینا ایک ہی دفعہ تاکہ جواب پورا دے سکو. نمبر 1, زمین اور آسمان ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں, وہ فیصلہ کر رہے ہیں. تو کیا زمین اور آسمان کے پاس دماغ ہے؟ کیا زمین اور آسمان کے پاس نفس ہے؟ اور زمین اور آسمان بول رہے ہیں, کلام کر رہے ہیں, کیا زمین اور آسمان کے پاس زبان ہے؟ 3 چیزیں ہیں, تینوں کا جواب دے. سنو, ہر چیز پر اللہ قادر ہے, ٹھیک ہے. اللہ چاہے تو اسے زبان بھی دے سکتا ہے, اللہ چاہے تو اسے عقل بھی دے سکتا ہے, اللہ چاہے تو اسے نفس بھی دے سکتا ہے, ہر چیز. کہاں لکھے گئے یہ تینوں ہمارا چیزیں ہیں؟ ایمان ہے. Give me one ایمان single. ایمان ختم ایمان ختم نا, ایمان ہے. ایمان ہے, اوکے چلے ٹھیک ہے, ایمان ہے تو پھر گیم ہی ختم ہو گئی بھائی. ختم نا, ارے وہی تو. ایمان کی سنو, اچھا ایمان کی کیا, اسپیکر جب ایمان ہی ہیلو نہیں رہے گا ہیلو تمہارے پاس تو تمہاری دنیا کی کوئی بھی چیز درست نہیں ہے. میرے پاس ایمان اس ہے, بات کو تو میں بتاؤں میرے پاس کیا ایمان ہے, ارے اسپیکر میں میرے کو اپنا ایک ایمان بات بتاؤں. بتا. سنو ارے میرے بات اچھا, کرنا. پاس قرآن میں بہت ساری چیز ہے, جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, اس کو کیا اوکے کیسے مانو گے یہ بولو. میرے کل کیا میرے کل تو یہ سب بھی تو وہ بھی زمین آسمان کا بولنا بھی تو میرے کو ہوا نا. میرے کل ہے نا, کل مک گئی. ارے میرے تو کل مجھے یاد آ گیا وہ پرانے دیوبندی دو علماء. میرے کل ایک منٹ راشد صاحب, تو آپ اس بولیے. بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بس ایمان کی بنیاد پہ آپ یہ اللاجیکل چیزوں کو مانتے ہیں, آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے؟ دیکھو سب سے بڑی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے وہ سچ ہے, اور یہی نہیں بلکہ تم اسی سورہ کے آگے جاؤ گے, ٹھیک ہے, تو اس میں خود کہہ رہا ہے کہ یہ ہر انسان خود اپنے چمڑے سے کہے گا, تو وہ کیسے کہے گا؟ یہ ہاں سب تو چیز سنو میری سوچو نا بات تم سنو. ہی ایگزیکٹلی راشد بھائی, میں وہی کہہ رہا ہوں, یعنی اللہ جو بات بولیں گے وہ سب آپ کو ماننی بولیں گے پڑے گی. نہیں, آپ کو دماغ بولیں گے نہیں, ہاں اللہ بول چکا ہے, اسلام مکمل ہو ہاں چکا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے نہیں بولنا, ایک بولیں منٹ, گے نہیں. مطلب اللہ نے جو بولا ہے ہاں وہ صحیح ہے نا, بولیں گے نہیں. ارے بول تو ارے لیا بولا بولنا ہے یار, ڈاٹا ختم ہو چکا ہے, اللہ کا ڈاٹا ختم ہو چکا ہے, اب بولیں گے نہیں. بالکل تم جیسے کم ہاں بختوں وہ کے لیے ڈاٹا ختم ہے. پھٹ گئے او مائی گڈنس, پھٹ گئے راشد بھائی, پھٹ گئے. عیسیٰ علیہ السلام مطلب کے بارے میں بولو نا, تم ہی بولو, چھوڑو عیسیٰ علیہ السلام ارے کے بارے میں بولو, بغیر باپ کے راشد کیسے بھائی پیدا ہوا. یا شاہد بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا سکتا ہوں, اجازت ہو آپ کی تو. ہاں بالکل چلو بتائیے. دے دے. اوکے سر, عیسیٰ علیہ السلام قرآن و حدیث اور تفسیر کے مطابق کیسا پیدا ہوا؟ بغیر باپ کے پیدا ہوا نہیں ہے. مانتے آپ لوگ؟ کیسے ہوا؟ کون نہیں مانتا ہے؟ میں بتا دوں کیسے پیدا ہوا. ہاں بتاؤ. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے, ٹھیک ہے, انہوں نے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض اٹھائی, ان کی یونی کے اوپر پھوکے ماری, ان کو شہوت دی,
شہوت دینے کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر جو صلب کے اندر پانی تھا وہ پانی نکلا، اور جو ان کی بون کے اندر پانی تھا وہ نکلا اور وہ مکس ہوا. سر آپ عربی پڑھ کے ذرا ہمیں ٹرانسلیٹ کر کے بتا سکتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں آتی ہم کو، عربی نہیں آتی. لکھا ہوا ہے آپ کو عربی نہیں آتی تو کس قسم کے آپ عالم ہیں یار، حد ہو گئی. یہ عالم کہا ہی کہ ہے، ہم عالم ہیں، یہ اوکے. کس نے کہا کہ عالم ہی ہے. یہ دیکھیں کیا کہتا ہے، فنفخ فیہا جبرائیل لتہج شہوتہا لئن امراتہا معلم تہج شہواتہا لا توجل فلما حاجت شہواتہا بنفی شبیدیل وقال ماء الذین کان فی صلبہا فی رحمہا. تو جبرائیل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی قمیض اٹھائی، ان کی یونی کے اوپر پھونک ماری، تو مریم علیہ السلام کی یعنی یہ جبرائیل مریم کے ساتھ فو پلے کر رہا ہے، منہ کے ساتھ اس کی یونی کے ساتھ جڑا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور وہ مریم علیہ السلام کی یونی میں پھوکے مار رہا ہے اور ان کو شہوت دے رہا ہے، ان کو انسائٹ کر رہا ہے. ماشاءاللہ یہ تم غلط ماشاءاللہ روایت سبحان بیان کر اللہ. رہے ہو، آپ کے سامنے لکھا یہ ہے، غلط روایت بیان کر رہے ہو تم. آپ کے سامنے لکھا ہے، جھوٹی ہے سچی ہے آپ کے سامنے ہے. آپ بتائیں غلط ہے کیسے؟ بالکل جھوٹی ہے، بالکل جھوٹی ہے. آپ ثابت کرتے جھوٹی ہے. ہاں تم ثابت کرو صحیح ہے، میں سامنے دکھا تم رہا ہوں ثابت لکھا کرو ہوا ہے، صحیح ہے. میں دکھا رہا ہوں کہاں لکھا ہوا، کہاں لکھا ہوا، کدھر ارے لکھا ہوا؟ کان پھٹ جائیں گے ایڈم اور راشد بھائی، کان پھٹ جائیں گے، تھوڑا آہستہ بولو یار نہیں پلیز. تم ہم کو بتا دو کہ کہاں لکھا ہوا صحیح. جب تفسیر تم الجامعہ ہم قرآن الحکام القرآن القرطبی. یہ قرطبی فرطبی کدھر کی ہم نہیں جانتے ہیں. تم قرآن کی بات کیے نا، قرآن سے بات کرو. لکھا ہوا ہے یہاں پہ ثابت کرو، ایسا نہیں لکھا ہوا. ہم نہیں جانتے ہیں، تم قرآن سے بات کرو. قرآن میں اچھا کس طرح قرآن سے کہا، بات کرتے ہیں، قرآن میں قرآن کس کی طرح. آیت دکھائے، قرآن کی بالکل آیت دکھائے. جب ہلو ایک منٹ قرآن میں جب کہو یہ نہ کہ ہو قرآن میں سارے کس تو صبر طرح. کرے، باقی سارے صبر کرے. ساحل قرآن کی بھائی آیت بتائیں. ایک منٹ. جی تم بتاؤ نا صادق قرآن صاحب کیا ایک ہے، میں تو کہا نا. صادق صاحب میں آپ کو پورا موقع دوں گا، تھوڑا سا رک جاؤ. یہ راشد بھائی پورے جذباتی ہو چکے، چلا نہیں رہے چونکہ جو ایسے اور بندوں کو لینا صحیح نہیں ہے، جو کہ جس کو دیکھیے اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں تو یہ دین کا ترجمان بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. تو اس کو اسٹریم میں لینا بھی صحیح نہیں ہے. یہ آئے گے گالی دیں گے اور یہ اس طرح کی باتیں کریں گے، قرطبی فرطبی بولیں گے، اس طرح کی باتیں. ان کو جب علم نہیں ہے تو ایسے لوگوں سے بحث کرنا سوائے اس کے کہ آپ کا اسٹریم کا یہ ڈیوریشن لمبا ہو جائے گا، اس کے علاوہ اور دوسری کوئی چیز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. نہیں. کوئی حل لیکن نہیں آپ نکلے گا. دیکھیے نا، یہ مومن ہے لیکن قرطبی کو نہیں تو مانتے، اس کو جلالین کو نہیں مانیں بالکل گے، ابن بات کرنے کثیر کا کو نہ نہیں ڈھنگ مانیں ہے. گے. تو یہ ایسے لوگ ہیں جو صرف نام کے مسلم ہیں، ان کو آپ ہٹا دیں، ٹھیک ہے. ان کو ارے کون اگر نام کا علم ہوتا مسلم ہے تو نہیں ہے، یہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا، لیکن ٹھیک ہے. یہ صادق فالتو بھائی گیری کرنے کے آپ لیے نے یہ حدیث صادق بھائی سنو. آپ ہی نے میں کہا تھا کہ قرآن کی بات راشد اچھا کر رہا ہوں، صادق بھائی قرآن کو کی. ان سے ذرا بات میوٹ کرنے کرتا دو. ہوں، میں ذرا راشد ایک بھائی کو منٹ میوٹ کرتا ہوں. ایڈم صادق بھائی آپ ہی نے صادق کہا بھائی تھا، اور ان کو بات کرنے دو. ہاں صادق بھائی آپ ہی نے جی کہا تھا کہ راشد کو پہلے بولنے دیں، رائٹ؟ ہاں وہ اس لیے، لیکن میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں یہ مطلب بےہودے انداز میں بات کر رہے ہیں. بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو خیر بولیں ذرا ان چلے سے، بولیں راشد کیا نام ہم نے ہے، راشد بھائی بولیں کو بھی کیا میوٹ کر بتائیں. دیا، میوٹ کر دیا. آپ اگر اپنی حجت اچھا رکھنا نہیں، چاہتے ہیں آن تو کر آپ دو. ساحل بھائی بول رہے ہیں ان سے بات کرنے دے ذرا. آپ ان بات سے کر لو. پوچھیں آپ بات کر لیں، میں کتنی میوٹ کر دیتا آپ کتنی تفسیروں کے نام جانتے ہیں بتائیں ذرا ہوں. یہاں پہ. کہاں ہے راشد راشد بھائی، کدھر ہے راشد بھائی انمیوٹڈ ہے سر، آپ کے لیے میں راشد بولنا بھائی؟ بند ہے. کتنے تفسیر کے آپ نام جانتے ہیں وہ بتائیں. آپ تفسیر کا نام سمجھ کر کے کیا کہنا چاہ رہے، بولیے نا. ہم کچھ نہیں کہنا ہاں؟ چاہ رہے ہیں آپ پہ، ہم کوئی فتوا نہیں نہیں لگائیں نہیں، گے. آپ کتنے تفسیر ہم کے کیا نام بول رہے جانتے ہیں ہیں ہم وہ پوچھ. کہ سنیے، یہ ارے بھائی وہ آپ ہم آپ پڑھیں، کو کیوں سنیے بتائیں گے، سنیے آپ کو ہم کیوں سنیے نا. بتائیں. نہیں کیونکہ آپ کو ہم کیوں آپ بتائیں کی بھائی زبان سے صاحب. لگ رہا ہے کہ آپ کی زبان سے لگ رہا ہے نا کہ آپ بہت بڑے جاہل انسان ہیں، اس لیے پوچھ رہے ہیں بس، اور کوئی بات نہیں ہے. نہیں آپ بہت بڑے عالم ہیں تو اچھی بات ہے نا. آپ یہ ہم کو یہ بتائیے کہ ہم کو اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے تفسیر بتانے کی. ہم قرآن کی بات کیے ہیں ان سے کہ قرآن میں ہم کو بتائیے، ٹھیک ہے. آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ کیا جانتے ہیں بتائیے تو. آپ اچھا بتائیے تو آپ قرآن ایک میں کام کیا عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے. سنیے تو قرآن، اچھا ہم کیا قرآن کی پوچھنا. آیت پڑھتے ہیں، آپ ترجمہ، آپ کو ہم قرآن کی نہیں آیت پڑھتے ہیں، آپ ترجمہ کرتے جائیے گا، ٹھیک ہے نا. بولیے جلدی پڑھیے بولیے، صادق میں بھائی قرآن پڑھیے، کی آیت پڑھتا جاؤں گا، آپ ترجمہ کرتے جائیں گے. اور مانا بھی بتا دے صادق بھائی، مانا بھی پوچھ ہاں لینا کیا مانا ہے اس کا. وہی میں پوچھ رہا ہوں نا. ہاں ٹھیک ہے، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی پوچھیے. ارے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیوں پوچھوں؟ ابھی آپ نے کہا کہ میں بس بول رہا ہوں عیسیٰ کوئی علیہ السلام کی بات چل رہی ہے ابھی. کیا. عیسیٰ علیہ ارے السلام بغیر راشد باپ بھائی کے وہ پیدا مومن ہوئے. ہے یار.
राशिद आप भाई कुरान वो की बात कर मोमिन रहे हैं है। ना, तो आप बात कर रहे हैं कुरान के बारे, आप- तो हम ईसा अलैहिस्सलाम के आप बारे में देखिए, हम हम बात ही नहीं ईसा करेंगे, हम अलैहिस्सलाम की कुरान के बात बारे में बात करेंगे। नहीं, सुनिए, हाँ, कुरान के मुतालिक हम ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुरान में बात करना चाह रहे हैं। और हम कुरान के इधर अलावा उधर के हदीस अहादीस में का, नहीं जाना चाह रहे। वो इमाम अच्छा कुरान कुर्तुबी के के अलावा बारे में जो अहादीस का बोले कोई हैं रोल आप नहीं भी। है? कुरान के अलावा अहादीस का कोई रोल नहीं है इस्लाम में? अरे भाई, पहले हम कुरान को देखेंगे, उसके बाद हदीस की बात करेंगे हम। तो वही पहले पूछ रहे हमारा हैं आपको, रब क्या कुरान कह का रहा है इल्म, कुरान में, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो वही पूछ रहा हदीस हूँ, को हम कुरान का देखेंगे, इल्म है क्यों ना नहीं आपको? देखेंगे? दिलो जान से हदीस तो हमारे लिए कुरान का इल्म, हुज्जत है। कुरान का इल्म है ना आपको? है तभी तो बात कर रहे हैं ना हम, इसलिए तो हम आपको तो बोले मैं कि एक कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम के बारे कुरान में आप की बात एक कीजिए। छोटी सी आयत पढ़ रहा हूँ, कुरान की एक छोटी सी आयत छोटी पढ़ सी रहा हूँ, नहीं, आप बड़ी जरा सी उसका नहीं, वो हम नहीं जानते। हमको ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बोलिए कि कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहा। वो छोटी सी आयत, पूरा आप हाफिज कुरान है, उससे हमको बहस नहीं है। फिर कितना आप किससे जान रही बहस है है? हमको समझ में आ रहा है। अभी आप कह रहे हैं कुरान के आलिम है, अभी आप बोल रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। कुरान में तो बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हुई है, तो इसका मतलब आप उसको नहीं मानते हैं? बहुत सारी चीज की बहस नहीं हो रही है अभी। अभी यहाँ पर ये बहस हो रही है, हमने ये कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम कैसे पैदा हुए, ये कुरान में से हमको बताया जाए। अरे कुरान में तो आपके वजू का तरीका नहीं लिखा हुआ, तो इसका क्या मतलब? वजू साबित नहीं है? अरे तो ये बात आपको किसने कहा कहने के लिए? आपको आपसे पूछ रहे हैं हम क्या, या हमको कह रहे हैं कि हम काहे कुरान लाल में हो क्या रहे हैं क्या नीचे लिखा हुआ से? हमें एक काम बताइए। करिए, चूल्हा से उतर जाइए, बहुत ज्यादा आप लाल हो रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्यों लाल होऊंगा? तुमको जो कह रहे करने के लिए, तो अपने आप को तो बहुत बड़ा अल्लामा कह रहे थे अभी। ये जाहिल है, तो वो मैं जाहिल इसीलिए है, पूछ उसको रहा हूँ तरीका नहीं कुरान, है बात करने का। मैं आपसे हाँ? यही सवाल कर रहा हूँ ना, आप इस नहीं तरीके नहीं, से सवाल बात क्या आप करोगे तुम तो डायरेक्ट कह रहे जाहिल है, ये है, वो है, बात करने का तरीका नहीं, तो लहजा है, नहीं। आप तभी क्या तो कह तुम? रहा हूँ ना, आपकी 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 बात से पता चल रहा है बहुत बड़े जाहिल हैं। आपको कुरान का एक आयत का तर्जुमा आप नहीं कर सकते, हम चैलेंज के साथ बोल रहे हैं, आप बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कुरान का तर्जमा कर चुके हैं हम, उसकी बहस नहीं हाँ, कर तो रहे हैं हम तुमसे यही कह रहे हैं इसीलिए हम चैलेंज कर रहे हैं। कि चलिए एक ईसा, आयत का तर्जुमा आप सुनो करिए। सुनो, अच्छा हम एक आयत तुमको छोड़िए, क्या चलिए एक बोल रहे आयत हैं? छोड़िए, 2 हर्फ हम पढ़ते हैं, उसका तर्जमा करिएगा और उसके बाद उसकी तफसीर बताइएगा, ठीक है ना? जी वो हम सादिक तुम्हारे भाई आप गुलाम पढ़िए, नहीं है कि पढ़िए हम आप। तुम्हारी तफसीर करने जाएं। जो हम तुमसे सादिक पूछ भाई रहे हैं आप और जो पढ़िए। स्क्रीन में बात हो रही है उसकी ये बात करो। राजी होंगे तब तो, ये राजी नहीं होंगे तो फिर नहीं क्या आप पढ़ फायदा? दो, हम तुमसे जो पढ़ दो, पूछ रहे पढ़ हैं दो। वो बोलो। हम जो क्या? सादिक तुमसे भाई जो आप पढ़ पूछ दो। रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान की आयत, वो बोलो तुम। हम तो इधर भाई उधर। हदीस में है ना, हदीस में तो है ना। फिर वही हदीस, फिर वही हदीस। पहले कुरान है कि पहले हदीस है, ये बोलो। फिर वही हदीस का क्या मतलब? कुरान और हदीस हम एक आपको दूसरे क्या से, पूछ एक रहे हैं, दूसरे की पहले तरफ, कुरान या पहले हदीस? कुरान के साथ दोनों एक साथ। हदीस, पहले कुरान की पहले हदीस, ये बोलो तुम। कुरान के साथ ज्यादा हदीस। बात। अरे तू ये हदीस कौन नहीं मानना कुरान के साथ हदीस? पहले क्या पूछ रहे हैं हम तुमसे? जब कुरान में तुमको कोई मसला नहीं मिलता है, तब हदीस में देखते हो, या फिर हदीस से कुरान को समझते हो। हाँ, तो हाँ? वही तो बात तो पहले कही हम जा रही तुमको है। इनका जो सवाल है वही है कि अगर कुरान में वो चीज नहीं मिली इनको, तो इनको हदीस से मिली, तो आप उसका जवाब दीजिए। हाँ तो तो आप देंगे बोल ना रहे हैं भाई, हमें लेकिन कुर्तुबी को नहीं मानता, इसको तुम नहीं जो मानता, पहले उसको ये नहीं मानता, बुकराती जाहिल कर की तरह रहे आप हो बात तुम, कर रहे हैं। सुनो, तुम जो बुकराती कर रहे हो आकर के, तो तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि जिस चीज के बारे में बहस हो रही है उस चीज के बारे में बतलाओ। इधर उधर एक क्या? आयत, 2 आयत, एक लफ्ज, 2 लफ्ज, तफसीर और तफासिर की तरफ मत जाओ। मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ ना, मैं आपसे अलग सवाल कहाँ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तो तुम उनका जो सवाल बात तुम हदीस से कर है। रहे हो, जो बात हाँ तुम कर रहे हो, वो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात करो। हाँ ठीक है, तो हदीस में है। हाँ, फिर वही हदीस में। कैसे भाई, तुम कौन हो? अल्लाह रहम करे तुम पर। हम कुरान की बात कर रहे हैं, तुम उधर किधर जा रहे हो? अस्तगफिरुल्लाह, तुम हदीस तो हदीस आपके हदीस पास हदीस। हदीस का जवाब नहीं है? मतलब जितनी भी बातें हदीस में है आप सीधा बोलेंगे कि हमको कुरान हम में दिखाओ। हम पहले वही तो मैं कह रहा हूँ, कुरान को सुने मानेंगे जरा। भाई, कुरान में देखेंगे कि कुरान में क्या कहा गया है। तो कुरान में वजू का तरीका नहीं बताया गया है, सादिक भाई, अरे हदीस में है। तुमको वजू का तरीका पूछ कौन रहा है? सदीक तो भाई, हम बोल रहे कुरान में नहीं है, तो आप, लेकिन आप वजू का तरीका आप मानते कि नहीं 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 नहीं, मानते हैं? फिर तुमको तरीका कौन पूछ रहा है नहीं वजू का? मानते हैं, नहीं सदीक मानते भाई, हैं। सदीक भाई, हाँ नाशिद भाई को हाँ, 5 मिनट में खत्म करूं? इनका, हाँ, अरे इनसे भाई बात करके तुमको खत्म तरीका करेंगे, ये कौन ले पूछ खत्म रहा है करो, 5 वजू के मिनट। बारे में? सदीक भाई, ये ले कुरान आ गया। तुम हमको ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताओ सदीक ना। भाई, कुरान कुरान, ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ दे। बिल्कुल। पढ़े क्या लिखा? हाँ। पढ़े क्या लिखा? हाँ, क्या लिखा हुआ है? इनको हम पढ़े। पढ़े 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 आराम से पढ़े, तर्जमा हाँ, भी करें। तुम बोलो ना, तुम ही बोलो, हम अरे काहे के लिए आपको बोलेंगे? पढ़ने तुम ही के लिए बोलो। कहा जा रहा है, आपके लिए 5 मिनट आपको दिया गया, आप पढ़ें जरा, तर्जुमा भी करें। हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम ही पढ़ो। आपको ना पढ़ना तो आएगा ये तो पढ़ेंगे। पढ़ेंगे ना तो समझेंगे। फनफखना फीहा मिन रूहिना, क्या मतलब है सर? इनको हम लोग पढ़ना उसमें आएगा तब तो पढ़ेंगे। पढ़ना नहीं आता मतलब पूछ लेते हैं, पढ़ना बता दे सर, मतलब बता दे।
आपकी फर्ज को पाकीज़ा कहा गया, उसमें रूह फूका फर्ज गया किसे है। कहते हैं? फर्ज किसे कहते हैं? हाँ, फर्ज की शर्मगाह ट्रांसलेशन को कहा करें, जाता है। यूनी को कहा जाता है, ओए यूनी होए को, होए राइट? होए औरत होए की यूनी को। फर्जा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुरान कहता है कि जिसने अपनी यूनी को देखो संभाल के मजाक नहीं रखा। उड़ाने का। अरे यार छोड़ देना, ये अरे नहीं मजाक लग का रहा। उड़ाया। अल्लाह ने आपको महफूज मामून रखा, अरे भाई कुरान में लिखा अच्छा हुआ है, रखा। कुरान में यूनी का लफ्ज लिखा हुआ है, मैंने बोला है। कुरान कहता है जिस औरत ने अपनी यूनी को संभाल के रखा, अल्लाह मीन ने उसमें रूह फूंक दी अपनी यूनी के हाँ। अंदर। अब अल्लाह मीन हाँ, खुद आए थे, यूनी को मुंह लगा के फूका था, या जिब्राइल को भेजा था मुंह फूकने के लिए? जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फेंका, तो वही तो हम कह रहे हैं ना। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऊपर से आए, मरियम की यूनी में फूकी, राइट? क्या गलाजत है यार हाँ, राशिद चलो भाई, ठीक है। क्या गलाजत है ये? चलो ठीक है। अब ये कुरान गलाजत के नहीं लग मुताबिक- रही? ये नहीं, ये गलाजत नहीं है ना, तुम्हारे नजदीक गलाजत है ये। तो कुर्तुबी ने जो कहा था ये वही तो कहा तुम्हारे था जो नजदीक कुरान में लिखा गलाजत है। है। अरे भाई कुर्तुबी ने वही तो कहा जो कुरान में लिखा है। कुरान में भी अल्लाह कह रहा है जिसने अपनी यूनी को संभाल के रखा, उसके अंदर फूका अल्लाह ने अपनी रूह। अब वो जिब्राइल के थ्रू फूकी हाँ, या अल्लाह खुद आके उसके फूका? अंदर कहाँ लिखा हुआ कि उसके अंदर फूक? अरबिक के अंदर जो एडजेक्टिव है यहाँ पे, उसके अंदर कहाँ लिखा adjective कि फूका? यार सुन लेना, जवाब दे रहा हूँ, सुनेगा नहीं, कानों से चिवंजियां निकाल के सुन। जो यहाँ पे अरबी की इस आयत के अंदर जो फालतू एक्टर का है, बात मत करो। अबे डंगर अरे सुन ले। ए नहीं, आराम से आराम से सुनेगा, एडम फिर डंगर मैडम, डंगर आराम तुमको से। नहीं बोलने का। एडम डंगर आराम से, डंगर नहीं एडम बोलने आराम का। से, आराम से। ओके अच्छा एकदम आराम से अच्छा बोलो। अच्छा, एक मिनट एडम। बोलने का नहीं। अच्छा एक मिनट एडम, एक मिनट। अच्छा अच्छा राशिद भाई, इतना जज्बाती क्यों है? पहले ये बताओ, आराम से भी तो बात कर सकते हैं ना? नहीं, जज्बाती हम नहीं है, उल्टी सीधी हरकत सामने हो वाले रहे को हो। बोलने की क्या जरूरत थी जब आपसे बात अच्छा हो रही तो थी। ये बताओ, तो एक मिनट राशिद भाई, एक चीज ये बताओ, इधर यहाँ पे आप कह रहे हो अंदर नहीं हाँ। फूका, ऊपर तो फूका ना? हाँ हाँ, ये कौन ऐसा फूका। करता है? शर्मगाह में कौन फूक मारता है यार? आंख में फूक मारते हैं भाई। इंसानियत के देखो हिसाब सुनो से मेरी बात, सुनो सुनो राशिद भाई, राशिद भाई इंसानियत सुनो, के अरे हिसाब मेरी से खत्म, आज भी अगर कुछ होता है किसी अरे को, खत्म तो लोग तो जाते होने हैं दो। फुकाने के लिए। सुनो, अरे तो के लिए। शर्मगाह में साहिल कौन भाई। फूकता है? अरे माँ कसम, अरे भाई मैं सर फोड़ लूंगा। शर्मगाह कौन फूका फोड़ लो नहीं ना। जाता है भाई? फोड़ लो आंख ना। फूक के, कौन आंख मना में, कर रहा है? फोड़ लो, आंख में मर जाओ अभी। क्या? फोड़ अरे लो ना मैं सर, कह रहा सर हूँ कि कह रहे हो फोड़ लेंगे शर्मगाह, तो फोड़ लो ना। अरे राशिद भाई बात तो बात सुनो, कर रहे हो यार। शर्मगाह में कौन फूक मारता है यार? आंख ये में कौन कचरा कहा कि जाता है, शर्मगाह आंख ने में फूक फूक मारा? मारा जाता है। नहीं तो नहीं, ये क्या कहा आपने कि कहा कौन ना कहा? यूनी, ये अरे क्या वो तो फर्जहा वो क्या है? वो उसके बारे में कहा कि वो उनकी बिल्कुल किसी तरह से किसी ने उनके साथ कुछ भी नहीं किया। कहाँ तो ये लिखा हुआ कहाँ है? लिखा है कि अरे उसने फूक फूका मार, दिया? कहाँ लिखा हुआ है ये? लिखा है ना किसी ने फूक उनके साथ मारा। कुछ नहीं किया? हाँ, कहाँ लिखा हुआ है वही कि तो किसी ने उनके साथ कुछ नहीं किया? कहाँ लिखा हुआ है? सनद का क्या मतलब है? हाँ, देखो, कुरान की आयत है कि आयत तक मुझे संभालना। किसी आदमी मतलब जरूर नहीं, कुरान अरे की आयत है कि संभालना। आयत तक, सुनो, बारी बारी कुरान चलेंगे, की बारी आयत बारी है, चलेंगे। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये यार कहा, रुको, सुनो, रुको, रुको, मरियम रुको, अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुको, कहा कि आज तक मुझे रुको, किसी बशर ने छुआ तक नहीं। रुको। फरिश्ता बशर नहीं होता ना भाई, पड़ जाएगा। फरिश्ता बशर नहीं होता है, फरिश्ता बशर नहीं होता है। एग्जैक्टली, बेहतरीन सर। अब जरा सुन ले, इस आयत पे रहते हैं। वल्लैती अहसनत फरजहा, क्या मतलब है? 3 वर्ड्स हैं, मतलब समझाएं। वल्लती है, एक एक वल्लती। मतलब बताएं एक एक लफ्ज का, एक एक लफ्ज का मतलब बताएं क्या मतलब तुमको बताया? यार। एक एक लफ्ज का मतलब बता दे, क्या रॉकेट साइंस है इसमें? नहीं, तुम ही बतलाओ ना, वही तो हम उस वक्त से बोल रहे हैं तुमको कि तुम बतलाओ ना, हम क्यों बतलाए? अरे यार, तुम साहिल, ये क्या इनकार कर डंगर है रहे यार? हो यार, तुम इनकार कर रहे हो ना राशिद भाई, हमने जो बताया आपको, आप उसका इनकार कर रहे हो, तो आप बता दो ना क्या मतलब है इसका। वल्लती माने जो। अहसनत फरजहा। हाँ, हाँ और वो हाँ, देखो, वल्लती जो है, और वो वल्लती माने वो पाक दामन बीबी जिसने अपनी पाक दामन असमत का की लफ्ज ही हिफाजत नहीं है की। यहाँ पे, पाक दामन का लफ्ज ही नहीं है, आसनत का लफ्ज बता। आसनत के माना पाक दामन ही होता है। नहीं, संभाल के रखने के ठीक होता है? है, नहीं संभालने अरे, के होता है। ये किसने कहा तुमको? हम उसका बात है- पाक दामन तर्जमा करते हैं, हम ऐਵੇਂ उसका करते पाक हैं, दामन अपनी मर्जी तुम्हारे से अंदर करते संभालते हैं। हैं। कहाँ से करते हैं? नहीं, कौन सी अपनी- डिक्शनरी से करते हैं? अच्छा कौन सी डिक्शनरी से भाई, करते हैं? लिसान से तुम बता गला दे क्यों फाड़ रहे हो अहसनत भाई? का अब मतलब, तुम गला क्यों फाड़ रहे हो? क्योंकि जब आप तुमको भी, हम
क्योंकि आप भी फाड़ रहे थे राशिद भाई, इसके लिए मैं बोला था कि आराम से बात करो, वरना हम लोग के कान फट जाएंगे, फाड़ रहे हो? कानों से खून निकल जाएगा। यही चीज आपको भी सोचना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये निकल ही नहीं सकता, ठीक है ना। और हम तुमको क्या बोल रहे जिसने संभाला अपनी यूनी को, हमने कितनी फूंक अच्छी बात है, दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर अपनी रूह। किसने अपनी रूह फेंकी उसकी यूनी के अंदर? किसने फेंकी? फूकी, जिब्राइल अमीन ने फूकी। हाँ, जिब्राइल ने अपनी वही तो रूह हम फूंकी। कह रहे हैं। जिब्राइल ने अपनी रूह फूंकी या अल्लाह की रूह फूंकी? अल्लाह की रूह फूकी, रूहुल्लाह। अल्लाह की रूह फूंकी। किसके अंदर? यूनी के अंदर। क्यों? फिर वही यूनी के अंदर। ये यहाँ किसने पे- कहा तुमको यूनी के अंदर? यहाँ पे एक ही नाउन है, नाउन गरीबान एक में ही है फूका। भाई। यहाँ पे हाँ, इसम हाँ, जो है हाँ। ना, यहाँ पे इसम सिर्फ फर्ज है और कोई इसम है ही नहीं। पूरी सुनो आयत में सुनो, जो इसम गरीबान में है, फूका। पूरी आयत में जो इसम है वो एक ही है, और वो है यूनी, और कोई इसम है ही नहीं। मुझे इस आयत में इसम दिखा दे एक और, यूनी के अलावा कोई दूसरा इसम दिखा दे, कौन सी है? इस पूरी आयत में यूनी के अलावा इसम दिखा दें क्या? भाई जिस वक्त मरियम अलैहिस्सलाम ने ये कहा था, भाई कि ये सवाल कैसे नहीं है, पैदा- भाई ये सवाल नहीं है। इस पूरी आयत में इसम दिखा दें यूनी के अलावा। तुम इस आयत को क्यों पकड़ रहे हो? इस आयत में ईसा भाई, अलैहिस्सलाम का बस इस ईसा आप आयत ही लेके आए थे, में, इस आयत में ये यूनी आयत के हम अलावा नहीं इसम लेकर दिखा के दें। आए हैं। आपने ईसा अलैहिस्सलाम का एग्जाम्पल लेके आया था। हम इंसान को लेकर के आए तो हम बता रहे हैं ना उसके बारे में कि ईसा अलैहिस्सलाम कैसे पैदा हो इस गए। आयत में यूनी के अलावा कोई दूसरा इसम दिखा दें। तो उसको तो पाक कहा गया ना। तो फूका किसमें? आयत में। एक ही इसम है ना। मानते हो कि सिर्फ इसम के नहीं, तौर नहीं। पे यूनी है? सुनो, सुनाओ फर्ज नहीं, है। इसम कितने हैं इसमें? इस आयत में इसम कितने हैं? वो इसम को छोड़ दो, तुम उसकी बात मत नहीं, करो। मैं भी छोड़ दूं, ट्रांसलेशन नहीं बनानी पूरी। फूकना उसी में है जो हाँ? इसम है, और किसमें फूका अल्लाह ने? फूका किसने? अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूं एडम, शायद इनको समझ में आ जाए। जी ठीक है राशिद भाई, गौर से सुनो। आपके पैर में जख्म है, ठीक है, आपके पैर में जख्म है, मैंने उसमें दवा लगाया। मैंने कहा दवा लगाया? सर में। जख्म में। जख्म जख्म जख्म, अरे है दिमाग है इनको। ओके। जख्म में दवा लगाया ना। तो हाँ। यहाँ पे बात हो रही है यूनी की, शर्मगाह यूनी की बात तुमको किसने ठीक है। कहा करने के लिए? अरे तो लिखा हुआ है उधर फटजाहा का, आपने खुद बोला ना यूनी होता है उसका मतलब। हाँ, तो उसको तो पाक साफ कहा गया है। उसको तो हाँ, पाक साफ कहा गया है ना, और तुम उसको हाँ अरे उससे बहस नहीं है, वो पाक है या नापाक है, उससे बहस नहीं है। बहस इस बात पर है कि हाँ यूनी में फूका। मान लिए तुम। तो क्यों बहस की इतना फिर? तो क्यों इतना बहस उसमें की? फूका और उसको निशानी भी बनाया। हाँ, दोनों माँ बेटा को, जहान वालों के लिए। तो ये एक अच्छा ये एक अच्छा तरीका है कि किसी महिला की, किसी लेडी की शर्मगाह पे फूक मारे। हाँ, ये यही क्या चीज तो हम तरीका है कहना फूक चाह रहे मारने थे ना का? कि तुम इस चीज को मानते हो कि नहीं शर्मगाह में मानते, ये फूक बताओ। मारना तुम इस ये चीज को गंदी मानते हो हरकत या है। नहीं मानते हो? बदतमीजी अरे ये हरकत गंदी है, हरकत है, गंदी हरकत है, ये इट्स अ बगैरती। अश्लील हरकत है, अश्लील है ये फिर लौंडा। ये बोलो कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा ही नहीं हुए। अरे वो बाद में, लेकिन फूक क्यों मारा? नहीं वो बाद में नहीं, फिर वही बात बोलो ना। फिर तुम इसी चीज को बोलो ना कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के नहीं हुए। फिर भाई कैसे माने? हम कह रहे हैं अल्लाह ने फूक मारी, अल्लाह का बेटा था वो। अरे ये साइंस वगैरह भी या जो भी हो, ये सब इसको तस्लीम कर रहा है। ये बोलो, तुम ये तस्लीम कर रहे हो क्या? साहिल यार पट गए। राशिद भाई ये क्या तरीका है भाई? नहीं ये राशिद भाई आप थोड़ा देखो, अभी आप जज्बाती हो, मैं कह रहा हूँ थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। जिस कुरान का दिफा करने आए हैं अच्छे दिमाग से सोच रहे हैं, और अच्छे दिमाग से तुमको ये हम बोल भी अश्लील रहे बात नहीं है, ये अश्लील बात नहीं है शर्मगाह में फूक मारना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी बीवी की ये तुम्हारे नजदीक, देखें सुनो, ये तुम्हारे नजदीक जलील वाली बात हो सकती है, लेकिन मेरे रब के नजदीक नहीं हो सकती, जिसने मरियम को पाक साफ रखा और जिसने बगैर। ये रब ने मारी है या जिब्राइल ने मारी है?
जिब्राइल ने मारी है, तो यहाँ रब पे के अल्लाह हुक्म से मिन मारी है। अल्लाह मिन रूहना क्यों कह रहा है? रूहना का मतलब होता है आवर स्पिरिट, प्लूरल में। जिब्राइल अपने आप को हमारे प्लूरल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये तो रूह तो अल्लाह की है, जिब्राइल की है ही नहीं। हाँ, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए क्या, जैसे ये खुद ये कुरान जिसकी तुम साबित ये करो दे रहे कुरान हो, में से, ये भी कुरान सुनो से साबित सुनो कर दो कि ये जिब्राइल ने फूंक मारी, अल्लाह ने नहीं मारी। क्योंकि अल्लाह कुरान में कह रहा है मिन रूहना, आवर स्पिरिट, हाँ प्लूरल के अंदर, सुनो जमा के सुनो सकीफे के सुनो अंदर। सुनो जिब्राइल अरे कभी भी सुनो जमा के सकीफे में नहीं आ सकता। सब पढ़ ले ओए, सुन पहले। ए सुनो जिब्राइल सुनो कभी भी सुनो कुरान सुनो में जमा के सकीफे में नहीं आ सकता। जब भी जमा के हाँ सकीफे सुनो में आप देखेंगे अल्लाह की जात को देखेंगे, आप कभी भी किसी और को जमा के सकीफे में नहीं देखेंगे। जिब्राइल का स्पिरिट नहीं है, अल्लाह का स्पिरिट है। अगर ये जिब्राइल का स्पिरिट होता तो ईसा आधा फरिश्ता होता। अगर ईसा आधा फरिश्ता नहीं है तो फिर ये अल्लाह की अरे रूह है। अल्लाह ने क्योंकि ही भेजा है जिब्राइल की रूह जिब्राइल होने को, के लिए, जिब्राइल की रूह होने अल्लाह के ने लिए ही भेजा खुद भी है। बताते हैं। सुनो सबर कर, अबे सुन बे। अच्छा अच्छा, अगर एडम एडम जिब्राइल आराम की से। रूह हो, अगर ये जिब्राइल की रूह हो, तो कुर्तबी बताते हैं इस चीज के अंदर कि अगर ये जिब्राइल की रूह होती तो फिर ईसा वुड बी हाफ एंजल, वो आधा फरिश्ता होता। लिहाजा ये अल्लाह की रूह नहीं है, ये अल्लाह की रूह है, जिब्राइल की रूह नहीं है। दूसरी बात, अगर ये जिब्राइल की रूह होती तो जिब्राइल के पास भी ताकत हो जाती क्रिएशन करने की। जिस तरह कुरान और हदीस के जरूर साबित है कि अगर तुम कोई पेंटिंग करते हो तो उसके अंदर रूह डाल के दिखाओ, इसीलिए पेंटिंग इस्लाम में हराम है। अगर जिब्राइल रूह डाल सकता है तो जिब्राइल भी क्रिएटर्स में से है, खालिकीन में से है। मेरी हुज्जत तमाम हुई, अब इनसे ले लें। अरे भाई तुम इसमें हुज्जत तमाम होने के बाद हम तो तुमको क्या बोले कि रब ने ही जिब्राइल अमीन को भेजा, ठीक है। अच्छा, एक राशिद भाई, एक कमेंट आया है हमारे डॉक्टर हाजी साहब का, नंबर 1 मोमिन है ये कह रहे कि ओनली लकी पीपल गेट सच ए चांस, शर्मगाह में फूक मरवाने का। ओनली लकी पीपल गेट ए चांस। आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं।